Yes, students, I am Monica Soral from MA International School, Nayagaon. Today we will be doing the 6th chapter from Beehive, My Childhood. Yes, My Childhood. This story is about APJ Abdul Kalam. Everyone knows who was APJ Abdul Kalam. He was a space defense. He had Abdul Kalam, whose projects in space defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. He was a great scientist that everyone knows. In his autobiography Wings of Fire, he speaks of his childhood. This is an autobiography written by APJ Abdul Kalam in which he writes about his childhood, उनका बचपन कैसे बीता था. Now see, he is writing, it is an autobiography, so he is writing it this way. I was born into a middle class Tamil family in island known town of Rameshwaram, where he was born in Rameshwaram, that is in middle class Tamil family. Now Madras state, my father Jainullabdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity. His father was not much educated, but he was a very generous person. Everyone liked him much. He had an idle helpmate in my mother. Now mother, see, he is talking about his mother whose name was Ashi Amma. I do not recall the exact number of people who fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. Now see, his mother, like an अन्नपूर्णा, she was so good that she used to feed the people. जो भी बाहर का कोई भी आता था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनके फैमिली मेम्बर्स हों या उनके रिलेटिव्स हों, कोई भी आता था वो इनके घर से बिना खाना खाए नहीं जाता था. हिज मदर नेवर लाइक्ड एनीवन टू गो विदाउट ईटिंग फूड, है ना. इस तरह की नेचर उनकी मदर की थी. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर डिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. अब उनके पेरेंट्स तो बहुत स्मार्ट थे, हैंडसम थे, टॉल थे, बट अब्दुल कलाम जो उनकी हाइट भी सही नहीं थी और वो लुक वाइज भी इतने स्मार्ट नहीं लिखते थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick. On the mosque street in Rameshwaram, my austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, necessities were provided for. Now, see, everything was there. उनके खुद का घर था, ancestral, मतलब दादाजी वगैरह का जो मकान होता है ना, उस तरह का मकान था उनका, और उसमें लग्जरीज वगैरह से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था. उनको था कि बस हम कंफर्टेबली रह रहे हैं, ये चीज़ थी उनको. एंड नेसेसिटीज जो भी है, जैसे टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स, इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. अब मेडिसिन की, फूड की कभी उनके घर में कमी नहीं आई. ऐसा भी उनकी हालत नहीं थी कि जो उनको खाना ही नहीं मिल रहा, उनको जो तबीयत खराब हो तो मेडिसिन नहीं मिल रही, ऐसा कुछ भी नहीं था. दे वो लीडिंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड हिज चाइल्डहुड वॉज वेरी कंफर्टेबल, ही सेड. एंड नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक इनटू in 1939 when I was 8 years old. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तब अब्दुल कलाम was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. अब देखो उस टाइम पे आना चलते थे, 1 आना, 2 आना, तो वो 1 आना उनके लिए बहुत था. वो छोटे से बच्चे को वो कमाई, उसको उनकी वो पहली कमाई थी, तो इट वॉज अ वेरी ग्रेट डील दैट ही डिड. माई ब्रदर इन लॉ जलाउद्दीन वुड tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area being isolated was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of suspension of the train halt at Rameshwaram station. अब ये जो वॉर का पीरियड चल रहा था, ये बहुत अच्छा नहीं होता है. नेचुरली एवरीवन हैज़ टू सफ़र अ लॉट. यहाँ पर व्हाट हैपेंड इन दिस वो ईयर, ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज इट वॉज अ आइसोलेटेड विलेज. ओके, तो बट देन ऑल्सो एक जो फर्स्ट कैजुअलिटी ये हुई थी कि ट्रेन जो है ना रामेश्वरम में हॉल्ट हो गई थी, वहाँ पर रामेश्वरम स्टेशन पे.
अब न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर नाउ हैड द बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट। न्यूज़पेपर वेंडर, यू हैव सीन, वो लोग कैसे बंडल बांध के वो न्यूज़पेपर्स को फेंकते हैं, तो वो जॉब करते थे। सी शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेज। जो शमसुद्दीन था उन्होंने उनको हेल्प करी थी कि वो बोला कि तुम मेरे साथ जो आओ और अपन ये न्यूज़ का बंडल वो करके आपको फेंकना है ट्रेन के अंदर बस, एंड फॉर दैट यू विल गेट द मनी। सो देयर ही हेल्प्ड हिम। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. अब ये देखो यहाँ पर क्या हुआ था, ये न्यूज़पेपर जो है ना बंडल करके जो थ्रो कर रहे थे रामेश्वरम में, एंड धानुष कोडी दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन। कज़न कौन, शमसुद्दीन कौन था, उनके कज़न थे जो ये वाला जॉब करता था, जो वेंडर का, जो बंडल्स बांध के न्यूज़पेपर को ट्रेन में फेंकना था। तो ये उनको, ही वॉज वेरी प्राउड दैट ही इज़ अर्निंग बाय हिमसेल्फ, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खुद की पैसे अर्न कर रहा है। तो ये शमसुद्दीन ने, उसके कज़न ने उनको सिखाया था। एवरी चाइल्डहुड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेन इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब देखो हर चीज़ अपन जो अच्छाइयाँ हैं वो बुराइयाँ हैं जो अपन के घर के, जो अपन के बड़े होते हैं उनसे लेते हैं। वैसे ही APJ अब्दुल कलाम ने अपने फादर से क्या ली थी, उन्होंने उनकी ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन लिया था। और मदर से क्या लिया था, ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। सबसे इन्होंने थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सीखा और अपने चाइल्डहुड को उन्होंने उस बहुत बेटर बना दिया। मतलब हर एक से गुड क्वालिटीज़ एंड द बैड क्वालिटीज़ विच शुडंट बी टेकन, विच शुडंट बी इनहेरिटेड, वो उन्होंने लर्न करा था। अब उनके 3 फ्रेंड थे, एक तो थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। अब देखो दीज पीपल, ही वॉज अ मोमेडियन एंड दीज पीपल वर फ्रॉम द ब्राह्मण फैमिलीज, हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एज चाइल्डहुड नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग्स आवरसेल्व्स। अब बच्चों को ये सब डिफरेंस नहीं पता होते कि कास्ट वगैरह बच्चे नहीं देखते, दे आर जस्ट फ्रेंड्स एंड दे वर वेरी कंफर्टेबल अबाउट दैट। नाउ रामानंद, इन फैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। वो तो सबसे बड़े जो प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, उनका बेटा था। एंड लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। उसके बाद वो भी वहाँ पर कौन बन गए, प्रीस्ट बन गए थे उसी टेम्पल के। नाउ अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस। अरविंदन बाद में क्या बन गए, बिजनेसमैन बन गए। तो ये अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं, एक तो बहुत बड़े प्रीस्ट बन गए, एक बिजनेसमैन बन गए, अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे। वहाँ वो उन्होंने केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। ना ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, आ फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद द स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल to the marriage site, situated in the middle of the pond called Rama Tirtha, which was near a house. अब ये एक उनका वहाँ पर सिस्टम था रामेश्वरम में कि एक आइडल को ले जाने के लिए वो बोट सजाई जाती थी। तो वो इनकी जो बोट थी उसमें उस आइडल को वो लेके जाते थे जहाँ पर शादी होती थी, मैरिज सेरेमनी होती थी, वहाँ उनको लेके जाना होता था। Events from the Ramayana and from the life of prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब कहानी कौन सी सुनते थे ये लोग रामायण सुनते थे और प्रॉफिट मोहम्मद की कहानियाँ सुनाती थी उनकी दादी और जो मदर थी वो सारी, तो वो कहानियाँ सुन सुन के ये बड़े हुए थे। वन डे व्हेन आई वाज इन द 5th क्लास स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास. आई यूज्ड टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री. नाउ एक टीचर उनके यहाँ पर 5th क्लास में जो थे वहाँ पर वो एक टीचर आया उनके स्कूल में, और ये जब उस टाइम क्लास में जो थे ना वो ये आगे 5th क्लास में ये लोग आगे बैठते थे और ये कैप पहनते थे. कैप से क्या पता चल जाता था, मोमेंट मुस्लिम, तो मुस्लिम से जो कैप पहनते ना वो वाली कैप ये पहनते थे, तो उससे पता चल जाता था कि ये मुस्लिम है. और वो बैठते किसके पास थे, रामानंद शास्त्री पास, जो कि एक बड़े मंदिर के हिंदू मंदिर के प्रीस्ट के बेटे थे, उनके पास ही बैठते थे. नाउ सी वॉट हैड हैपेंड आफ्टर दैट, उन्होंने क्या जनेऊ भी धारी कर रखा था. जनेऊ नो द सेक्रेट थ्रेड दैट द हिंदूज द ब्राह्मण्स दे वेयर. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम. अब ये जो नए टीचर आए थे ना ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप थे, तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एक मुस्लिम एक ब्राह्मण लड़के के साथ कैसे बैठा हुआ है. सो
In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit in the back bench. I felt very sad, and so did Ramanand. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left lasting impression on me. अब देखो उनने क्या करा, अब्दुल कलाम को पीछे के बेंच पे जाके बैठने के लिए बोल दिया, बिकॉज ही वॉज अ मुस्लिम. ही सेड दैट यू कांट सिट विद अ ब्राह्मण बॉय. अब ये दोनों फ्रेंड्स को ये अच्छा नहीं लगा कि वाई ही डिड दैट, एंड Ramanand, who was a Brahman boy, he started weeping that why he did this to my friend, and they both didn't like it. Now next we will